Good evening and welcome to the briefing room. I'm Madhav Das Gopalakrishnan. Ladies and gentlemen, the loudest cries for justice are no longer echoing from the national capital. They're rising from the streets of Jharkhand. For 10 straight days, JPSC and SSC aspirants have stayed put, braving relentless rain and strong winds after being denied permission to pitch tents. Living on simple meals and refusing to leave the protest site, students have turned their agitation into a sustained movement. Slogans targeting the Hemant Soren government have grown louder as anger over the alleged exam leaks deepens. The leaders who supported the Jantar Mantar protest are not visible in the Jharkhand students' protest. Why this difference in approach? Is there selective attention towards protest? With 11 arrests, the JPSC chairman's resignation and the opposition accusing the ruling alliance of double standards on accountability, the protest has become a major political test for the JMM Congress government. The agitation in Jharkhand has moved beyond protest to a full-fledged demand for accountability. Students have laid out a 5-point charter seeking cancellation of the 14 JPSC prelims, a CBI and ED probe into alleged exam irregularities, an investigation into blacklisted exam agency, the TDPL, and sweeping reforms in the state's recruitment bodies, as well as a transparent, time-bound examination calendar. Now, this focus has shifted from one leaked exam to fixing an entire recruitment system. Now, the JMM Congress government has ordered a probe into the JPSC SSC paper leak. Let's give you the action taken by the JMM Congress government so far. The first, they've ordered a CID probe into the JPSC leak. Second, JPSC chairman L. Khiangte has resigned since. The third, CID has raided 20+ locations statewide. Action number 4, CID has arrested multiple exam officials. Action 5, documents seized for forensic probe. Now, these allegations in the JPSC leak case have pointed to a coordinated breakdown of the examination process, from question paper seals allegedly broken before the exam to candidates reportedly filling OMR sheets outside examination halls. The claims are extremely serious. There are also allegations that blank OMR sheets were tampered with after the exam. Solved answer keys surfaced online, and insiders within the examination system facilitated the breach. Together, these accusations have triggered a massive credibility crisis over Jharkhand's recruitment process. Amidst the ongoing protest, student leader Devendranath Mahato has emerged as the face of the movement. Like Sonam Wangchuk, who was on a 26-day hunger strike, Devendranath Mahato has now started an indefinite hunger strike. Mahato's demand is clear: cancellation of the 14th JPSC examination alleging irregularities in the recruitment process. Listen in. मेरा कहना है कि ये जांच से पर्याप्त चीज हो गया है कि पीटी परीक्षा को रद्द करना चाहिए। तो वर्तमान समय में झारखंड सरकार का जो रवैया है और आयोग का जो रवैया है, इससे झारखंड के तमाम छात्र का मेरे पास फोन आ रहा है। इस प्रकार से मनोबल टूट रहा है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार करेंगे, कुछ जांच पड़ताल होगी और अचानक किसी दिन मुख्य परीक्षा का तिथि घोषणा कर दिया जाएगा। तो हम छात्र का मनोबल को बनाए रखने के लिए इस लड़ाई को आगे और बढ़ाते हुए सत्याग्रह के 9वें दिन आज हम अपना अन्न को त्याग कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। सबसे पहले 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराएंगे। Meanwhile, the political slugfest over JPSC protests in Jharkhand continues. The BJP has backed, in fact, the protesting aspirants, alleging corruption and nepotism in the commission, as well as accusing the government of ignoring youth concerns. The Congress has hit back, questioning BJP's track record on JPSC exams and saying that dialogue is the only way to address the grievances of protesting students. Listen in. Genuinely नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है। इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है। कोई भी व्यक्ति जो है उसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो कांग्रेस के सदस्य हैं, जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं। और ना ही जंतर मंतर पर गला फाड़ करके चिल्लाने वाले वो तमाम कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के लोगों का एक बयान इस संबंध में आ रहा है। हमारा ये मानना है कि अविलंब सीबीआई जांच करा करके जेपीएससी जैसे के तमाम मामलों पर जो छात्रों का मुख्य डिमांड है उसको पूरा किया जाए। हेमंत
हेमंत सोरेन जी के आने के पहले 5 सालों में उन्होंने एक भी एग्जाम जेपीएससी का कंडक्ट नहीं किया है। और उनके कार्यकाल में पहले इलेक्शन जो पहला जो जेपीएससी एग्जाम हुआ, सारे के सारे चेयरमैन से लेकर सारे मेंबर वो जेल में थे, सब पे एफआईआर। तो वो भारतीय जनता पार्टी का कोई नैतिक आधार नहीं बोलने का। देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुआ है, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ कर दिया। पर अभी तो झारखंड का प्रोटेस्ट चल रहा है ना सर। मैं ये बोल रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो इस मांग के देश में कहीं भी पेपर लीक हो, कहीं भी पेपर लीक हो, विरोध होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। After over 8 days of protest, CJP founder Abhishek Dipke has now responded to the JPSC paper leak controversy. Speaking to protesting students, Dipke has extended support to the Jharkhand aspirants and said that CJP stands with their demand for justice. Listen in. जी कल रात को ही मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे बात की और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं हम पूरी तरह आपके साथ हैं और आप संघर्ष करते रहिए। जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ हम पूरी तरीके से। All right, and let's take this across to our guest now. Joining us with us is RP Singh, national spokesperson of BJP. We have Pooja Tripathi, spokesperson of the Congress party, joining us. Raj Singh, senior journalist, is with us. We also have Jeet Kumar, aspirant, who is with us, and Irfan Ansari, minister in the government there in Jharkhand, is also joining us. Irfan Ansari ji, सबसे पहला सवाल आपसे, जो स्टैंडर्ड अपनाया गया जंतर मंतर को लेकर, वही स्टैंडर्ड झारखंड की सरकार पे क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए? स्टूडेंट्स यहां भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साफ तौर पे जब अरेस्ट और रेड्स हुए हैं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात है। क्या सेंटर और स्टेट में दो यार्डस्टिक्स एक्सेप्टेबल है? नहीं, देखिए हमारी सरकार, हम लोग यूथ के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी वो लगातार इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा एक्शन भी हुआ हमारी सरकार में। झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी पुलिस हमारी एजेंसी पे कार्रवाई की, इसलिए कि लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ियां हुई है। एक्शन में आया, चेयरमैन का इस्तीफा हुआ, कई लोग जेल गए और हम लोग बताना चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है। राहुल गांधी जी का मार्गदर्शन है और जिस प्रकार हमारे युवा जो धरना दे रहे हैं हम लोग उनसे वार्ता कर रहे हैं, हम लोग टच में हैं। और मैं कहना चाहता हूं जिस प्रकार मामले को सेंट्रलाइज किया गया है ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ के आप ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखिएगा तो ये लोग हमसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, ये न्याय मांग रहे हैं। बच्चे क्यों बैठे हुए 10 दिन से? हमारी सरकार देगी। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप बताइए बच्चे क्यों बैठे 10 दिन से? हाँ, ये न्याय मांग रहे हैं। इनके पूर्व में अब 26 साल हो गए झारखंड बने हुए, 14 ही जेपीसी एग्जाम हुआ। आप सोचिए, और ये हमारे सरकार में हर साल एग्जाम हो रहा है। लोगों को उम्मीद बढ़ी है, रोजगार हम लोग दे रहे हैं, छुट्टियां मिली है, एक्शन हुआ है। तो सीआईडी इंक्वायरी क्यों हो रही है सर? अगर इतनी अच्छी तरह आप लोग सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं तो सीआईडी इंक्वायरी क्यों हो रही है? इसकी नौबत क्यों आई? नहीं, देखिए मैं तो वही तो कर रहा हूं। हमारी सरकार को तो बधाई देनी चाहिए आप लोगों को। हमारे झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट जहां कार्रवाई हो रहा है। सर ऐसे तो यही लॉजिक केंद्र सरकार का भी था कि रीनीट एग्जाम करा दिया तो हमें बधाई दीजिए, स्टूडेंट्स ने 1 साल बर्बाद नहीं किया। तो यही इसी तरह के तर्क आप भी दे रहे हैं। सर एक मिनट बात सुन लीजिए सर मेरी। अच्छा, आप हमारी मत सुनिए। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे साथ है। जीत कुमार इज एन एस्पिरेंट फ्रॉम अस, who's joining us right now. इनफैक्ट जीत कुमार, आप क्या कहना चाहेंगे इरफान अंसारी जी से? क्या आप संतुष्ट हैं? क्या स्टूडेंट्स जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आर यू हैप्पी विद द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट? Good evening, sir. We have gathered here against the irregularities happened during the examination that is taken by JPSC and JSSC. और इरफान सर, आपको जोहार। मैं आप ही के स्टेट का छात्र हूं और सर बस एक ही शब्द आपसे कहूंगा, अगर आपकी नीति और आपके सरकार के स्टेप से हम लोग खुश होते तो आज यहाँ इतने हजारों के संख्या में जो छात्र हैं आंदोलनरत हैं पिछले 10 दिनों से, वो नहीं कर रहे होते। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं सर कि सरकार की नियति और नीति इससे इस चीज़ से डिसाइड करती है कि वहाँ प्रजा, वहाँ जो स्टूडेंट है वो इसके बारे में क्या सोचती है। और अगर हम लोग इस चीज़ को लेकर आश्वस्त होते तो सर हम लोग ये आंदोलन नहीं कर रहे होते। क्यों आखिर अभय तिवारी, आज और क्लियर हुआ सर, उसने 9 एग्जाम क्लियर किए हैं सर। अभय तिवारी वही इंसान है जो कि TDPL एजेंसी का मैनेजर रहा है और JSSC CGL जैसे इतने बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम उसने क्रैक किए हैं एंड ही स्कोर्ड एंड ही गॉट द 2nd रैंक
in the section of BSO. तो सर ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो उठा रहे हैं ना आपके जांच एजेंसी पे और बाकी सारी चीजों पे। 135 में संध्या रात देयर इज अ स्क्रिप्ट डिस्प्लेड बाय द CID ऑफिस, दैट इज संध्या रानी मेहता, एक वहाँ पे एक मैम थी, उन्होंने ये कन्फेस करवाया है कि 135 में से 120 आंसर एक्सेप्ट किए गए हैं, वो रटाए गए हैं नेपाल में। आपने इस चीज को क्यों क्लियरिफाई नहीं किया सर? आपने उसको 66 आंसर पे क्यों ले आए? इज इट पॉसिबल टू गेट 66 आंसर? ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। है कि हम लोग एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, खामियां है तो कार्रवाई कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर ये इल्जाम लगेगा तो टोटली रबिश। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात को। तो सर आप बारिश में उनको परमिशन नहीं दे रहे टेंट लगाने की, बारिश में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे कुछ बहुत कम उनको खाने वाने को भी मिल रहा है वहां पे। ऐसे में देखिए बहुत इंसेंसिटिव तरीके से इनके साथ डील नहीं करना चाहिए इरफान जी। हमने दिल्ली में भी देखा क्या हुआ, क्योंकि जो देश का युवा आक्रोशित है और स्टूडेंट्स कहीं पर भी हो इस देश में, अगर उनको लग रहा है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा तो उनको पूरा अधिकार है इस तरह प्रोटेस्ट करने के लिए, वो अधिकार आप उनसे नहीं छीन सकते हैं। आप युवाओं के साथ हम लोग हैं, हमारा झारखंड में हम भी हैं, एक कमेटी गठित किया गया है, हम लोग उनसे वार्ता करेंगे। मुख्यमंत्री जी बाहर थे, वो आ गए हैं, और हमें लगता है कि वार्ता से ही हल निकल जाएगा। जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है सेंट्रल में, ऐसी यहाँ कोई बात नहीं है। युवाओं की जो मांग है हम लोग पूरा करेंगे। हम मुख्यमंत्री कहाँ थे पिछले 10 दिनों से? बात कर रहे हैं, लगातार वार्ता हो रही है सर। यही तो, किससे वार्ता हो रही है, कौन बात कर रहे हैं? क्योंकि यही आरोप केंद्र सरकार पे भी लगा था कि 20 दिन तक उन्होंने बात नहीं की स्टूडेंट से। आप प्लीज हियर मी, प्लीज लिसन मी। बीजेपी के लोग धरना में जा रहे हैं, वहां गमछा पहन के जा रहे हैं, भारत वो लोग बीजेपी के स्लोगन लगा रहे हैं, तो वहां सरकार क्यों जाएगी? सर तो आपके पार्टी के पवन खेरा भी जंतर मंतर गए हैं, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के सारे विपक्षी दल वहां गए, लेफ्ट पार्टीज के लोग वहां गए। हर स्टेट का अपना अपना एग्जाम होता है, याद रखिएगा। अभी मध्य प्रदेश 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में पेपर लीक हुआ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश तो हब है पेपर लीक का, वहाँ सरकार कभी कार्रवाई नहीं की है। सर अगर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको कवर करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स की मांग है ये, इसको राजनीतिक रूप से केवल मत देखिए क्योंकि स्टूडेंट्स का भी इशू है। बट बिकॉज यू रेज्ड द नेम, टेकन द नेम ऑफ बीजेपी, आरपी सिंह रिस्पॉन्ड टू दैट। व्हाट अबाउट स्टेट्स रूल्ड बाय द बीजेपी? इन मध्य प्रदेश and उत्तर प्रदेश as well there are paper leaks happening. Please respond to the minister from Jharkhand. Madhav, the action has been taken in each and every state wherever the paper leak has happened, but here there's no agitation by the students. The question here is that there's a hypocrisy in the Congress, that here when it comes to Delhi there's a different role to play, when it comes to Jharkhand they have different things to say. But fact is that these students are sitting on hunger strike. These students are on strike from so many days, but no one is going to meet them. He said that the CM was out of country or wherever he was not in town. But they're seeking resignation. Who will the education minister, who's the CM himself, will he resign or not? Dharmendra Pradhan ji resign. But will Mr. Hemant Soren resign or not? That's the first question. Then secondly, what's the problem with handing over the complete probe to the CBI? What's the problem with handing over the complete probe to the CBI? Why are you scared of CBI? Because you don't want a transparent inquiry to happen to the complete matter. Raj Singh is also with us. He's a senior journalist from Jharkhand. Coming to just a second, Mr. Ansari, there are 2 other panelists who've not made their opening comments even. Mr. Raj Singh, 2 very serious questions. सबसे पहले CBI को इंक्वायरी क्यों नहीं सौंप दी जाती? एंड सेकंड, क्या धर्मेंद्र प्रधान की तरह हेमंत सोरेन भी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे? ये बीजेपी के सवाल है, जवाब दीजिए। देखिए, एक पत्रकार के तौर पे हम लोग घूमते रहते हैं, ग्राउंड में घूमते हैं, क्योंकि झारखंड जो है स्टेट, यहाँ ज्यादातर जो है गांव, पहाड़, जंगल, इस तरह के इलाकों में जाना रहता है। सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि क्या इस जेपीएससी को लेकर पहले सीबीआई की जांच नहीं हुई है? क्या सीबीआई ने इस जेपीएससी के मामले को लेकर पहले कभी जांच नहीं की है? मैं आपको बताऊं कि इससे पहले सीबीआई जांच हुई है जेपीएससी को लेकर। 2004 से लेकर 2010 तक जो है दिलीप प्रसाद रहे थे चेयरमैन, आपको याद होगा, या मैं याद दिलाना चाहूंगा, उस वक्त जो है जेपीएससी की जांच जो है सीबीआई ने की थी, और सीबीआई ने जांच ही नहीं की, उसमें 11 परीक्षाओं का जो अभी भी जो है जांच वो लंबित है। तो मेरा सवाल ये है कि आप जा कहां रहे हैं? जड़ में तो आप जा नहीं रहे हैं। आपने धर्मेंद्र प्रधान का उदाहरण दिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान का उदाहरण दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने चलिए इस्तीफा दे दिया, या आप झारखंड के सीएम से इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन ये दिलीप प्रसाद कौन है? ये कहां से आए हैं? एल ख्यांगते कौन है? ये कहां से आए हैं? ये किस परीक्षा को पास करके आए हैं?
आप उसमें जड़ में जा रहे हैं। क्या आपने एजुकेशन सेक्रेटरी से, जो सेंट्रल में सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, उनसे इस्तीफा मांगा? हटाया गया एजुकेशन सेक्रेटरी सर, कैसी बात कर रहे हैं? हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को हटाया गया पिछले थर्सडे को, जिस दिन पीएम ने पहली बार वीडियो जारी किया था। मैं वही बोल रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि ये जिम्मेदारी किसकी है? ये कौन कराता है परीक्षा को? कंडक्ट कौन करवाता है? ये नियम कौन बना रहे हैं? ये सर पर एक चीज बताइए, जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको हटाने की बात इज ऑफ कोर्स रेलेवेंट बिकॉज दे आर द वंस कंडक्टिंग द एग्जाम, बट किसी भी सरकार में राजनेताओं का क्या रोल रहता है? क्योंकि सारा मंत्रालय जो है राजनेताओं के दिशा निर्देश में चलता है, तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती कि नहीं बनती? तो फिर एक चीज देखिए, आप जो है सिर्फ एक पॉलिटिशियन पे या पॉलिटिशियन के ऊपर जिम्मेदारी देकर एक बड़ा चंक जो है, जो इस देश को चला रहा है, जिसको हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो बच्चे अभी वहां बैठे हुए हैं, कल के तारीख में वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा बनने जाएंगे। नहीं, वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में देखिए राज सिंह जी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में चाहे देश के लेवल पे हो, चाहे राज्य के स्तर पे हो, जो लेजिस्लेटर्स को आम लोग चुनकर उनको लाते हैं सरकार में और वो लेजिस्लेटर्स अपनी सरकार बनाते हैं। उन 5 सालों के दौरान यदि कोई गवर्नेंस की इश्यू हो, करप्शन की इश्यू हो, मिस गवर्नेंस की इश्यू हो, द पब्लिक हैज एवरी राइट टू आस्क फॉर दैट पर्सन टू स्टेप डाउन। दैट इज हाउ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वर्क्स एट द सेंटर लेवल और एट द स्टेट लेवल। सर मैं वही चीज कह रहा हूं कि पिछले 25 सालों से झारखंड के भीतर जेपीएससी को लेकर ये जो घाव है वो कभी भर ही नहीं पाया। आप समझिए कि सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच ऑलरेडी पहले हो चुकी है। इस मामले में चेयरमैन से लेकर तमाम जो उसके अधिकारी वो जेल जा चुके हैं। 7 साल से हेमंत सोरेन की सरकार है राज सिंह जी, 7 साल से अगर आपकी सरकार है, आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। अरे मैं वही चीज देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार में एटलीस्ट कम से कम जेपीएससी का एग्जाम तो हुआ। हेमंत सोरेन की सरकार में सीआईडी की जांच तो हुई। एल ख्यांगते से सीआईडी जांच तो पूछताछ तो कर रही है। जब मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं, आज कई ठिकानों पर सीआईडी ने कोचिंग संस्थानों, अभी आप कह रहे हो सीबीआई 10 साल से जांच कर रही है, अब आप उससे पहले एग्जाम कैसे नहीं हुए फिर? हाँ तो सीबीआई जांच कर रही है, उसका क्या फलाफल निकल कर आया मुझे बताइए आप। RP Singh, respond to that. CBI has been probing for 10 years and nothing has come out of the CBI probe. Respond to him. Well, why are they running away from resignation of the education minister? Here in Delhi, they seek the education minister resignation. The answerability lies with the education minister, who happens to be the state chief minister also. And students are demanding for the resignation. But they won't say a word. And similarly, the case with Karnataka also. Similarly, cases Punjab also. When they won't ask for resignation, there are paper leaks in the states, and then people who go and agitate, they are being beaten in Punjab. They have been beaten by sticks and beaten by other materials in the Punjab. Okay, let me bring in. In fact, Congress spokesperson who's with us, Pooja Tripathi, joining us. Pooja Tripathi, simple question that is being asked: are there double standards? Is there hypocrisy when it comes to the term of accountability? One yardstick used at the center, another yardstick in the states such as Jharkhand. Question number one. And my second question to you is that LOP, of course, Rahul Gandhi has every right to go wherever he wants in the country. Every citizen has that right. But at this point of time, he's going to Chhatru for a Chhatru Ki Goonj function to Prayagraj this Saturday. Should he also perhaps pay attention to what is happening in Ranchi? Madhav, good evening to everyone. I'll take your question on accountability. You know, from day one, when the CID has been investigating, 11 people have been arrested, the chairman has resigned, 6 to 8 hours daily there have been investigation that's been happening. The person whose OMR sheet was leaked is apparently NDA's ally, Ajisu. And that's where I'm saying you are asking from accountability. Hemant Soren has been on day one. And I really, as an alliance partner, as somebody who's representing alliance partner, I really want to ask Hemant, request Hemant Soren to reach out to students because he has been accountable. Have the protesters being beaten up, thrashed at the site? No. Have the protesters been manhandled? No. Have they been denying? You're comparing apples with oranges. Let me tell you why Parvendra Pradhan resigned. They have always been gaga over why Parvendra Pradhan. Okay, one by one. She's making her opening comment. RP Singh, just a second, let her make her opening comments. But Preeti, the question is very simple. Let me tell you, the question is very simple. Beating up and the violence that happened on the streets of Delhi is one aspect of it. The larger question is taking accountability for failures in the education system. In this case, taking accountability for paper leaks in the recruitment system. And JPSC has been a monumental failure in whose term?
It has been in Bharatiya Janata Party stamp, bhai Batijawad, postings by bribery, everything has been messed up by Bharatiya Janata Party. You are saying accountability. Where is Amit Shah, who has ordered firing, pellet gun firing on the protesters? Why So, hasn't ma'am, Amit Shah but what ji, is why the resolution? hasn't- How are you planning to get these students off the streets? Will you continue to keep them in those tarpaulin covers on the streets of Jharkhand as it rains without even permission to erect a full-fledged tent? Is that the way forward? Minister of country are running away from answers. They have not turned up in Lok Sabha giving an explanation to the country. Article 75(3) says that you are accountable to Lok Sabha. Okay. Haven't 20 July they haven't turned in Lok Sabha. Bharatiya Ma'am, but the Janata only Party, difference is right now the education minister at the central level has resigned. No such action that we've seen as far as any political leader in Jharkhand is concerned. We'll have to leave it there. Completely out of time. Pooja Tripathi, RP Singh, Raj Singh, Jeet Kumar, as well as Mr. Irfan Asari. Thanks so much for joining us this evening. And a short while earlier, I also spoke to former Jharkhand Chief Minister, Mr. Raghubar Das, on this entire controversy. This is what he had to tell us.